بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا، اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ نانا سے کہنا، نانا جان، جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ حسین العابدین میرے بیٹے بتانا، علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے؟ نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا؟ سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا؟ بابا آپ جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا؟ بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا؟ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، اور گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں، آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عرش مقام امام حسین سبط پیمبر نواس رسول صبح سے لے کر اب تک جو ہے جس کو بھیجتے ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتا، امام خود ہی جو ہے ان کو لانے کے لیے جاتے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، صبح سے شام تک کے ایک ایک لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور آپ نے ابن عساکر کا قول سماعت کیا کہ امام پاک کے شہزادے پاک سیدنا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام پاک پر جو گزری، لکھنے والے مورخین نے لکھا، ابن عساکر نے بھی لکھا کہ امام پاک کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے بال سفید ہو گئے، اور امام پاک پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا یہ اثر پڑا کہ آپ پر جو ہے وہ بظاہر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر آنسو اتنے نکل چکے ہیں کہ اب آنسو بھی خشک ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے۔ امام پاک جو ہے وہ خود بھی پیاسے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے۔ کبھی سکینہ شہزادی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے۔ کیا ستم ظریفیاں ہیں اور لوگوں کا کیا ظلم ہے، لوگوں کا وہ ساقی کوثر کے نوازوں کے ساتھ کیا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پاس نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کا لحاظ نہیں ہے، ان کی نسبتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، امام دیکھتے نہیں شہزادہ علی اصغر کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ہاتھوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، سوکھی زبان دکھا کر کبھی روتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام اگر ان کی نظر میں، ان ظالم یزیدیوں کی نظر میں اگر ظلم کیا ہے تو ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے تو جرم ہم نے کیا ہے، ان سے اگر مقابلہ آرائی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے، اس ننھے سے معصوم کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جائیں اس ننھے معصوم کو لے کر اور ان سے کہیں، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیا کرتے ہیں، بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، شہر بانو میری عادت ہے کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، ہم عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ خاندان نبوت کی ریت مانگنا نہیں، عطا کرنا ہے۔ کبھی رباب ہاتھ جوڑ رہی ہے، کبھی حضرت لیلا کہتی ہے، حسین مان جاؤ نا، تشریف لے جائیں، وہ چند قطرے بچے کو پانی پلا دیں گے تو اس کو قرار مل جائے گا، ہم اپنی پیاس پر ضبط تو کر سکتے ہیں، ننھے معصوم کا آخر حال تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سیدہ زینب پاک نے کہا، میرے بھیا حسین آپ نے میری بات کبھی ٹالی نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس بچے کو لے جائیں اور لے جا کر کے ان سے گزارش کریں، اگر وہ چند قطرے بھی پانی پلا دیتے ہیں تو پھر یہ بچہ کم سے کم چپ ہو جائے گا، اس کو قرار مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا۔ امام نے بہن کی بات سنی، بات سننے کے بعد ننھے شہزادے علی اصغر جو سوکھی زبان بار بار جو ہے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے، آپ اندازہ کریں 6 مہینے کے بچے
की उम्र होती ही क्या है, 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो शामी फौज की तरफ बढ़ते हैं। अमर साद और शिमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन के आने का अंदाज है, ऐसा लगता है जैसे हुसैन बयात के लिए आ रहे हैं, जैसे हुसैन ने अपने आप को जो है हमारे सामने जो है अल्लाह अकबर गिराने की कोशिश की है और हमसे मुसालहत करने की कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह इतना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम पाक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा हुसैन बात क्या है। मेरे इमाम ने आस्तीन का साया जो हजरत सैयदना इमाम अली असगर के चेहरे पर किया हुआ था और वो नूर का पुतला, अल्लाह अकबर, वो नूर का मुजस्समा, अल्लाह अल्लाह, इमाम की आस्तीनों से के साए में छुपा हुआ था। इमाम ने आस्तीन हटाई और कहा ओ यजीदियो बदबख्तो, अगर तुम्हारी नजर में जुर्म किया है तो हमने किया है, ये मेरे नन्हे मासूम का क्या कसूर है। ये 3 दिन का प्यासा है, माँ का दूध खुश्क है, नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो, चंद कतरे पानी दे दो, ये बच्चा पानी पिएगा। मैं ना आता और ना मेरी आदत मांगने की है, लेकिन घर की खवातीन ने जो है वो वास्ते दिए, इसलिए मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिला सकते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम शिमर ने कहा कि हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे तो फिर तुम एक एक करके और लोगों को लाओगे और उनको भी पिलाने के लिए कहोगे, या तो बैत करो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और उस जालिम ने कहा माअज़ल्लाह कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद शिमर ने इशारा किया, अल्लाह अकबर, एक पलीद जिसको क़यामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, हुरमला बिन काहिल को इशारा किया और इशारे से कहा कि हुसैन को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। लो आज हुसैन को बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है, अब आज के बाद हुसैन का बच्चा कभी रोने ना पाए। इशारा करना था, एक तीर चला, सैयदना इमाम अली असगर शहजादा अली असगर के हलक का निशाना लगाकर उस जालिम ने तीर चलाया। इमाम तो पानी पिलाने के लिए गए थे, हालांकि दुनिया अब तक यही सोच रही है वो पानी पिलाने गए थे। वल्लाह साक़ी कौसर का शहजादा पानी पिलाने नहीं बल्कि बेटे को शहादत का जाम पिलाने गया था। लेकिन बात बस इतनी थी, इतनी सी बात थी कि जो घोड़े पे जा सकते थे वो घोड़े पर गए थे, जो ऊंटों पर जा सकते थे वो ऊंटों पर गए थे, जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे चल के गए थे। लेकिन जो पैरों पे चल के, घोड़े पे चल के, ऊंटों पे चल के नहीं जा सकता था, कुदरत ने उसके लिए कितनी अजीम सवारी का इंतजाम किया था। राकिबे दोशे पैगंबर पर इमाम अली असगर सवार होकर मैदाने करबला में जा रहे हैं। अली असगर मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम राकिबे दोशे पैगंबर के राकिब बनकर अल्लाह अकबर करबल के मैदान में जा रहे हो। अगर तसव्वुर की चश्म से देखो मुसलमानों, वल्लाह करबला में जितने गए हैं सबकी सवारी में अगर सबसे बेहतरीन सवारी किसी की है तो वो शहजादा अली असगर की सवारी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इमाम ने फरमाया पानी पिलाओ और उसके बाद गोद में लेकर खड़े थे। हुरमला बिन काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुवार निकली। इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। इमाम ने जैसे ही तीर को खींचा वो नूर का पुतला हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गोद में मासूम अली असगर ने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ा इमाम पाक ने अपने शहजादे अली असगर का खून जो है अल्लाह अकबर के आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा सुनी, हुसैन क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। जमीन पे डालना चाहा तो कहा हुसैन क़यामत तक जमीन पे दाना नहीं उगेगा। मेरे इमाम ने उस शहीद के पाक खून को अपने चेहरे पे मला और फरमाया यजीदियों क़यामत के दिन हुसैन इसी अंदाज से दावरे महशर की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह अकबर। इमाम पाक अपने नन्हे से शहजादे की शहादत को अपनी आंखों से देखा, आसमान
आसमान की तरफ निगाह करके कहा, मौला कुर्बानियों के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है, कुर्बानी के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है। आप जानते हैं ना, 1 साल से कम का अगर बकरा हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 2 साल से कम का जानवर हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 5 साल से कम का ऊंट हो कुर्बानी नहीं हो सकती। ये उम्र की कैद क्यों है? मतलब ये है कि जानवर के नन्हे बच्चों पर भी कुर्बानी नहीं होगी। इसका मतलब ये है इस्लाम बच्चों का कितना लिहाज सिखा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हिकमतों में एक हिकमत तो ये भी है ना कि बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। इमाम कहते हैं, मौला जानवरों के लिए भी तो कुर्बानी की कैद है, लेकिन तूने 18 साल का कड़ियल कबूल कर लिया है, तो 6 महीने की ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इमाम खेमे की तरफ पलटते हैं, बीबी आपस में बातें करती है। अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती, अली असगर के रोने की आवाज नहीं आती। हो सकता है जालिमों ने पानी दे दिया, बच्चों पर तो काफिर भी तरस करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आए और जो है वो बीबियों ने हाथ फैला करके इमाम से कहा, इमाम लाइए, सुकून हो गया ना अली असगर को, हम तो पहले ही कहते थे कि वो पानी देंगे, आपने देर की। इमाम ने नजरें उनकी तरफ उठाकर फरमाया, हाँ पानी पी लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों नहीं बल्कि साक़ी कौसर के हाथों से मेरे बेटे ने पानी पिया। लो अब कभी अली असगर पानी के लिए बेचैन नहीं होंगे, कभी बेकरार नहीं होंगे। बीबियों ने जब इमाम अली असगर का लिबास खून में तरबतर देखा और खून में इमाम आली मकाम का वो अंदाज देखा, तड़प गई। अल्लाह अकबर। कोई पछाड़े खाकर जमीन पे गिरी है, कोई बेहोश होकर जमीन पर आई है, किसी की चीख निकली है। इमाम के लिए इम्तिहान है, खुद सब्र करें, सब्र की तलकीन करें। 6 महीने का नन्हा बच्चा शहीद कर दिया। ये है दास्तान करबला। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। हुसैन निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम नन्हे से शहजादे अली असगर को उनका लाशा जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद इमाम बीबियों को सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठकर बैठ जाते हैं। बाबा मेरे होते हुए आप किस तरह जाएंगे मैदान में? बाबा आप ना जाएं बाबा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अगर तुम भी गए हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने का जरिया और सबब बनना है। और नाना से जो अमानतें बाबा को मिली थी, बाबा से मुझे मिली है, वो अमानतें मैं तुम्हें उसका अमीन बनाता हूँ। मेरे इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, सीने की राज सीने में मुंतकिल किए और अपना जानशीन मुकर्रर करके फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब मदीने जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीबियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सुनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खेमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खेमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खेमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम कभी बहन को तसल्ली देते हैं, कभी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे रुबाब को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे लैला को तसल्ली देते हैं, शहजादी सकीना को कभी तसल्ली देते हैं, बहन उम्मे कुलसूम को कभी समझाते हैं। एक इमाम हुसैन है। कितना अजीब सा इम्तिहान है, कैसा अंदाज है अनोखा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दूर से
गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, न करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर ये हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खेमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊंटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया, क्या बात है? अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्ज मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ्फुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर साक़िए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है। जल्दी बताओ बात क्या है? आने वाले ने कहा, इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है? क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? शहजादी ने कहा, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आपका नाम तो बताएं, आप कौन है? शहजादी ने कहा, मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं आने वाले काफिले का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा मक्का शरीफ गए थे, उन दिनों मैं बीमार थी और मेरे बाबा ने कहा था, बेटी बीमार हो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेज देंगे और तुम्हें बुलवा लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं इंतजार करती हूँ, ना नामा बर आता है, ना भैया आता है, ना कोई खत आता है, ना कोई खबर आती है। इतना पता चला कि बाबा जान मक्के में मुकीम थे और बाद में कूफा चले गए। जब से कूफा गए हैं बाबा कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सुगरा की ये बात सुनकर वो कहता है, वो कासिद कहता है, इमाम मैंने उनसे कहा बीबी मैं कूफा ही का रहने वाला हूँ और मैं कूफा वापस जा रहा हूँ। तो सैयदा ने कहा, एक काम करो, अगर मेरा खत ले जाओगे तो बड़ी नवाजिश होगी। और उसके बाद कहा कि देखिए ये खत है और मैंने लिखा है, मेरे बाबा को पहुंचा देना। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दादी सैयदा फातिमा के घर के कुछ बर्तन है, ये अगर खत मेरा पहुंचा दो तो मैं बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। मैंने कहा, शहजादी मुझे अहलुल बैत की गुलामी काफी है, बस मैं आपके काम आ जाऊं, इतना मेरे लिए काफी है। आप दुआ कर दे, आपकी दादी खिदमत कबूल कर ले, मेरे लिए इतना बस है। कहा, देखो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मेरे छोटे से सामान को न ठुकराओ, सामान कम समझ करके नजरअंदाज न करो, ये सैयदा के घर के बर्तन है। मैंने कहा, सैयदा के घर के बर्तन सैयदा के घर रहे, मैं खत पहुंचा दूंगा। कहा, अच्छा मेरे बाबा बड़े मालदार हैं, वो तो भिखारियों को भी हजारों से देते हैं, वो तो भिखारियों की भी झोली भर देते हैं। जब मेरा खत ले जाओगे ना, मेरे बाबा तुम्हें माला माल कर देंगे, ये खत ले जाओ। और खत ले जाने के बाद जब मैंने खत हाथ में लिया तो एक छोटी सी गठरी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेरा भैया, छोटा भैया अली असगर है, उसके कपड़े हैं, ये कपड़े उस तक पहुंचा देना, कुछ खिलौने हैं। मैं अपने भाई को जी भर के देख ना सकी, खिला ना सकी, ये खत बाबा को देना और मेरे भैया को ये तोहफा देना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ये बातें सुनते हैं लेकिन जिगर छलनी होता है। सुगरा की बातें, अल्लाह अकबर। इमाम को खत दिया, इमाम ने खत लिया और खत लेने के बाद वो जल्दी से उजरत में बड़ा कजावे के पास गया, छोटी सी गठरी उठाई और कहा, इमाम आपकी शहजादी सुगरा ने ये अली असगर के लिए कपड़े दिए हैं और ये कुछ अली असगर के लिए तोहफा है। जब वो गठरी हाथ में ली और अली असगर का लाशा देखा, इमाम ने कहा, अली असगर तोहफा तो आया है लेकिन तोहफा कबूल करने वाला दुनिया में न रहा। सुगरा तुमने इखलास के साथ तोहफा तो भेजा लेकिन तुम्हारा अली असगर उसको पहन न सका। मौला अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई, चीखें निकल गई, खुदा जाने उनके दिलों पर क्या गुजरी। इमाम ने खत खोला, खत पढ़ा। खत क्या था? बाबा से शिकवे, भाई से शिकवे,
बहनों से शिकवे, अम्मियों से शिकवे, फूफियों से शिकवे, और शिकवे ही शिकवे हैं। आपने तो कहा था भेज के बुला लेंगे, आपने तो कहा था खत लिखेंगे, आपने तो कहा था हमें इत्तलायत देंगे, कुछ नहीं किया बाबा। लेकिन किसे खबर थी कि बाबा किस हालत में है। इमाम रो पड़े, सैयदा सुगरा का कासिद रवाना हुआ, इमाम आली मकाम सूए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं, या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तज़ा रिकाब थामते थे, अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर। अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुशनसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे, क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम अली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है, भैया इसे पहचानते हो? जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेबंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के
जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना, ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है, और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं, एक बार फिर खुतबा देते हैं, ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद, तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया, फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदर कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली, तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजन मूली की तरह जो है वो सर कटते थे। ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त उन जालिमों ने देखा कि 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर मुकाबले पर है, जुल्फिकार हैदरी सरों को, गर्दनों को काट रही है, तो जालिमों ने कहा एक काम करो, इस तरीके से एक एक मुकाबले के लिए न जाओ, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कह लें कि सैयदा का चांद अल्लाह अकबर गहना गया। और ये कैफियत हुई, अल्लाह अल्लाह, रूहें आलमे बाला की तरफ बिलकने लगी, रूहों की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, आसमान थर्रा गया, जमीन का सीना दहल गया। अल्लाह अकबर, सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। 33 जो है वो जख्म थे, 33 जख्म थे नेज़ों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई। गोया के गैब से निदा आई, ए हुराने
بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے، اللہ اللہ میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے چاہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی والی سلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیویاں تڑپتی رہی، بیویاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے گردنیں کٹ رہی تھی، لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے کو آگ لگ گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے۔ سیدہ سکینہ پاک سے پوچھا پوچھنے والے نے، تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے۔ ہائے ہائے، جو پھولوں کی سیک پر چلنے والی شہزادیاں تھی، آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، زیورات چھینے، کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا، آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر، ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا اس میں میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا بچا ہے، بیمار ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، جب امام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، صاحب بدایہ نے لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے، دوپٹے چھینے جا رہے، ان کے زیورات چھینے جا رہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے۔ اللہ اکبر،
دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی. لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے, مٹکے خون سے بھر گئے, دیواروں پر خون برسا, جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے, لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. حالت یہ تھی پوری دنیا میں زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی, کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں, لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے. امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی. کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا. 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی, خون کی. یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جا نہ ہوگا. اللہ اکبر. ادھر یہ حالات ہیں, ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی, اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے جو وہ نشہ کرنا شروع کیا. شراب کا دور چلا. کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا. وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے. بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے, بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے. الگ الگ روایتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی. ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. رات کا عالم ہے, رات کا سناٹا ہے, ہوا زور سے چلتی ہے, بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب, اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی. امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی, خاندان نبوت کی بیبیوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی. اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہیں, سسکیاں اٹھ رہی ہیں, بیبیاں رو رہی ہیں. سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے, پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے, بکھری ہوئی لاشیں ہیں. کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں, ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں, ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں, ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. دین کے محافظ حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک, رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا. ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں, کوئی ہے نہیں. زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں, لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد آپ ٹہل رہی تھی روتے ہوئے. کوئی نہیں تھا, کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے. آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے, کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے, کردار زینب بھی ادا کرنا ہے. کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب, کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب. جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب, جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. زینب کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے سیدہ زینب نے ثابت کیا. ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے. سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے. جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے. بابا آپ کہاں چلے گئے بابا, بابا مجھ سے بات تو کرو بابا. اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے. شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا, سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا, جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم, بابا تم کہاں ہو؟ تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں. تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں. بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی.
आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया, खबरदार, अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटने आए हो? खबरदार, अब आगे ना बढ़ना, वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साये ने करीब आकर कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी हूँ। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं, कई दिन के भूखे प्यासे, मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ने कहा, बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो, खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया, ए हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम असगर ज़बान होठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी, पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीवियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा, अच्छा हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सकीना ने इतना सुना, पूरे काफिले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना ओ सकीना, सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलट कर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफिले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफिले में मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीने से चिपटाकर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर। क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने। बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी, ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है लेकिन गमों की रातें